ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਅ ਸ਼ੋ ਬਟ ਕੇਨੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਮ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸੈਂਡ ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈ ਸ਼ੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾइंड ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨल्स ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਨੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾइंड them. They're busy their lifetime Monday to Friday and then 9:30 to come to the studio. It's a hard job. It's a hard job for me to find these people like them. ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਮੇਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਇਟਸ ਜਨਰਲ ਚੈਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਯੋਰ ਏਜ ਜੱਜ ਔਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡਾਇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਟੂ ਯੂਕੇ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਿਹਾਲ ਕੋਕਾਡੀਆ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? Kuradia. Okay, Kuradia. I knew I was going to get it wrong. How are you? Thank you so much for coming to the show. I really appreciate. And I like when people make an effort and you give something to the community. What would you like to say there? Thank you so much. It's an honor to be here, Pal sir. And बहुत अच्छा लगा यहाँ तक आके। तो मेरे बारे में बताओ तो मेरा नाम नेहल कुराडिया है। मैं वैसे मेरी फैमिली गुजरात से है लेकिन मैं born and brought up What place in Gujarat? Saurashtra. I know Surat. I know Ahmedabad. Yeah. Okay. How far are you from there? But I was born and brought up in Mumbai. अच्छा मुंबई में हाँ। Yeah. So I was born and brought up in Mumbai और मैंने वहीं से मेरी स्कूलिंग मेरा ग्रेजुएशन किया इन फूड्स न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। एंड कोविड के तुरंत बाद मैं यहाँ पे मूव हुई। मैंने मेरा मास्टर्स किया इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उसके बाद मैं साउथ ईस्ट लंदन में चाइल्ड वेट मैनेजमेंट में काम करती थी। एंड अभी कुछ टाइम से मैं एडल्ट वेट मैनेजमेंट में काम करती हूँ एज एन एडवांस्ड डाइटेटिक असिस्टेंट at Guy's and St. Thomas's NHS Trust. It's very interesting. मेरी आदत है मैं खोज करता हूँ इंसान की हमेशा। When we younger, like very young, you're totally confused. मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने ये करना. You want to do a lot of things. So there's some people actually do make it, the other ones don't. Yeah. बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं ही बनूंगा लेकिन हर लोग नहीं बनते हैं. When you were younger, schooling, not knowing much आपने क्या करना, when did you decide what you want to do? I always knew कि मुझे हमेशा से पता था मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। Really? तो मैं 10 साल की थी तब से मैं सबको बोलती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। Anybody in the family? No. तो how come? पता नहीं, मुझे बस ऐसा था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। क्या बात है। लेकिन डॉक्टर बनना थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मुश्किल तो नहीं लेकिन शायद पूरे 20s निकल जाए। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होता है बट मुझे सिमिलर फील्ड में जाना था। एंड मेरे पेरेंट्स को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे अच्छा खाना, कैसा खाना, बाहर का कम खाना, सब जगह मेरी मम्मी टिफ़िन लेके जाती थी जहाँ पे भी हम बाय रोड ट्रिप करें या कुछ भी। So you developed the interest from there, ना? Exactly. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे youngsters you do something like what you're doing. लेकिन from the one of the biggest city in the world, Mumbai, then one another world capital, London. What made you come here? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी एंड मुझे इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी लंदन में करना था लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, मैं घर की पहली लड़की हूँ
तो वो बोले नहीं मास्टर्स करने जाना, ग्रेजुएशन तो यहीं पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आई। You know the way you talking, the way you are. मुझे ऐसे लगता है कि you love your job, है ना? डेफिनेटली। मैं I do the body language, मैं स्टडी करता थोड़ा बहुत मुझे भी मेडिकल का, you know, you learn over the years when you meet people, different people, professions like yourself. वो बोलते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, तो मुझे भी थोड़ा I get that idea. तो you know it's so nice. चलो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ we need to know ਕਿ ਬੱਚੇ when do they decide what they want to be in their life. Some achieve, some don't achieve it. And she's done it a good job. One of the biggest cities in the world, Mumbai, then coming to UK because of opportunity. And then opportunity is here in this country, definitely 100%. It's you, up to you. और किस तरह आप उसको grab करते हो, किस तरह पकड़ते हो. It doesn't come easy. It's a bottleneck. Some people go through it, some don't. So जो भी बहुत important. She speaks very good Hindi. अपने बम्बे तो आई naturally. How come you didn't go to the Bollywood and all that? जो भी बम्बे से आता तो लगता है they're going to be connected with the Bollywood, but you're not. Unfortunately तो नहीं। इसीलिए तो you're doing a good job, to be honest. Thank you. चलो जितना मैं कह के हटा प्लीज जनरल टॉक हैगा okay it's a talk show but very professional talk show हैगा. It will affect a lot of people but please don't take this as advice. जितना मैं कह के हटा individual cases ਹੁੰਦੇ ਨੇ. These people need to know a lot of history about the patient, about the family before they can prescribe or before they can tell you कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ. General talk हैगी which will really help you. मैं हमेशा कह लेना प्लीज शो देखा करो. It will be really, you know, sometimes को बंदा इदां दी गल कह ਜਾਂਦਾ the penny drops and your life will change. So ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰ no, listen to the professionals, it can change your life. ये अच्छा क्या call you by the first name Nihal? Yeah. Nihal. Nihal, ये जो बीमारी especially diabetes and overweight वगैरह why is it so common in the South Asian community? Well, I know the food तो पहले मौका वो तो सबको पता है लेकिन now people are very learned, advanced in any country, even India के अंदर यहाँ पे तो अभी भी क्यों ये चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। सी ऐसा है कि ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। लोगों को लगता है कि अरे शायद ये जो पर्सन है वो शायद ज़्यादा खाता है, कम एक्सरसाइज करता है या करते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है ये। एंड स्पेशली हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। बहुत सारी ओबेसिटी के साथ बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इसमें जैसे कि हमारा जेनेटिक्स है, हमारा मेकअप जिससे हमारी बॉडी बनी है, हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे आसपास सुपरमार्केट्स में क्या मिलता है, खाना कैसा मिलता है, या बहुत सारे फास्ट फूड चेन्स है, या लेजर सेंटर्स है, पार्क्स है जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, घूम सकते हो। तो इतने सारे फैक्टर्स है कि वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। बट उसके कारण साउथ एशियन पॉपुलेशन में रिस्क ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन ये जो फैसिलिटी है आप जो मेंशन कर रहे हैं, नॉट ओनली विद साउथ एशियन, ये तो सब दुनिया के अंदर ऐसे है। विद जो वाइट कम्युनिटी है, वाइट ब्रिटिश है, अमेरिकन है, कोई भी है, दे गॉट मोर फैसिलिटीज देन वी साउथ एशियंस हैव इट इन फैक्ट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनको क्यों कम रिस्क है उनका? मेनली मैं वही बोलूँगी कि जेनेटिक्स जो होती है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लाइक हम अभी कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। वो हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, वो हमें जनरेशन सो वी कैरिंग दैट फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। या सो हाउ कैन की मैं अभी क्वेश्चन ऊपर नीचे जाएगा थोड़े से बिकॉज यू डूइंग सच अच्छे जवाब आंसर दे रहे हो। तो मेरा भी जब भी मैं कह रहा हूँ बिकॉज यू कमिंग विद सच अ गुड आंसर्स, तो मेरा दिमाग भी खुल गया अभी अच्छी तरह से। तो हाउ कैन वी नीड टू ब्रेक दिस समवे? यस, डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप जैसे मुझे पूछ रहे थे कि क्यों हमारा साउथ एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो रिसर्च बताता है कि अगर हमारा साउथ एशियन पॉपुलेशन में अगर BMI की बात करें, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स हो गया, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, बहुत कॉमनली लोगों को पता है। तो अगर हमारा BMI 21 से 24 के बीच में है, तो हमारा जो रिस्क होता है, ओबेसिटी का रिस्क, डायबिटीज़, अलग अलग कंडीशंस का रिस्क दूसरे पॉपुलेशन में जो 30 BMI का होता है उसके बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हो जाते हैं।
तो हमें कम बीएमआई में बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आपने बोला कि फैमिली हिस्ट्री होती है, अभी इनहेरिट करती है मेजोरिटी, लेकिन अगर किसी फैमिली के 4-5 बच्चे हैं, पेरेंट्स को डायबिटीज है, जो भी एक कभी दफ़ा ऐसे भी होता है कि बच्चे को नहीं होता कुछ भी। डेफिनेटली होता है, क्योंकि तो वही चीज़ है जो हमारे हाथ में है कि हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, हम अभी क्या कर सकते हैं। अगर हम 20s में है, 30s में, 40s में, अगर हमें पता है कि हमारे फैमिली में ये रन करता है, तो हम पहले से ही उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। एंड ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है कि ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी मतलब एक्सेस मोटापा या एक्सेसिव फैट जिसे बोलते हैं क्लिनिकल टर्म्स में, उसके कारण होता है। एंड हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में मेनली वो पेट के अराउंड या फीमेल्स में लोअर बॉडी के अराउंड होता है। तो सिर्फ वो जो होना, उसके कारण हम बहुत सारी दूसरी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं और वो हमें बहुत जल्दी आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली में रन करती है वो चीज़, तो हम उसका पहले से ध्यान रखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हमें शायद कभी ना हो हमारे 70s 80s में, लेकिन अगर हो भी गया तो हमारे 40s 50s में नहीं आएगा, 10 20 30 साल बाद आएगा। तो वो भी एक बोनस ही है मेरे हिसाब से। मैं ना बिकॉज खुदा का भगवान का बड़ा शुक्र है, बहुत दुनिया जानती है, तो बड़े लोग रिंग करते हैं कि पाँच जी को पूछो, पाँच जी को पूछो, कितनी बातें होती है। तो अभी जैसे खाने वाले की मैं बात करता हूँ, पुराने पेरेंट्स खाते थे। अभी मैं अगर खुद की बात करूँ, सिंस यंग मुझे ना गाड़ी में बड़ा, स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, कार रेसिंग के अंदर। दैट्स द बिगेस्ट स्पोर्ट आई यूज्ड टू प्ले इन माय लाइफ। वो जो मेरा बड़ा लड़का ना, उसके अंदर है वो, ही इज फॉलोड, जैसे बीमारी पिक करती है उसने मेरा प्रोफेशन पिक किया हुआ है। ये तो यंगर को नहीं इंटरेस्ट था उसके ऊपर, सो बीमारी की तरह वही चीज हो गई है। व्हाट आई एम कमिंग टू इज, अगर मैं, अच्छा दूसरा मेरे फादर को ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे लेट मी फिनिश, देन यू प्रोबब्ली थिंक यस दिस इज इंटरेस्टिंग। मेरे फादर को बड़ा था कि खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए। मेरे को है वो, between my sons, one of them got, the other one hasn't got it. तो ये अभी लिंक तो टूट नहीं रहा। बहुत अच्छा सवाल है, और ये आई थिंक आउट ऑफ हैबिट होता है बहुत बार कि वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, ह्यूमंस। हम हर चीज़ हैबिट के बेसिस पे चलते हैं कि अगर हम सुबह उठ रहे हैं, हम सोचते नहीं है कि हमें ब्रश करना है, हमें मुंह धोना है। Exactly. तो हमारी मसल मेमोरी हो गई है। तो उसी तरह से जैसे आप बता रहे थे कि खाने के बाद मुझे मीठा खाना है, शायद वो मेरी क्रेविंग हो सकती है, बट रोज रोज अगर वो हो रही है या फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो हमने हमारी आदत बना ली है। तो हम हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि हाँ, खाना खत्म हुआ, उसके बाद मैं कुछ मीठा खाऊंगा, उसके बाद ही मेरा खाना खत्म हुआ। समझ रहे? तो इसके लिए अगर वो हैबिट हमें ब्रेक करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज जो हैबिट्स हम बनाते हैं सालों साल, या फिर हम अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को देख के बनाते हैं, तो अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करें तो वो रातों रात नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा परिश्रम हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपने जो सवाल पूछा, इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको नुस्खा बताऊंगी। अगर आपने अपना लंच, डिनर, जो भी मील ख़त्म किया, उसके बाद आप 10 मिनट तक, 5-10 मिनट तक रुक जाइए। आप 5-10 मिनट तक कुछ और काम कर सकते हो, या डिशेस लेके टाइडी अप कर सकते हो, एंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए अपने आप को फ्रॉम द फूड। तो हम फुल्ली ग्रोन एडल्ट्स हैं, हम बड़े हैं। अगर हम अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं वो डिसीजन बनाने के लिए, तो हम खुद को बोल सकते हैं, हाँ, अगर मुझे वो मिठाई या मुझे वो मीठा खाना है, मैं खा सकता हूँ या मैं खा सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ, एडल्ट हूँ। वो बच्चों को कैसा पूछना पड़ता है। तो हम अपने खुद को एम्पावर करेंगे वैसे, बट सिर्फ ये 5-10 मिनट में मैं नहीं खाऊंगी, एंड मैं कुछ और काम करूंगी। मैंने टाइडी अप कर लिया, मैंने शायद थोड़ा घर में धीमे वॉक कर लिया, कुछ भी कर लिया। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि शायद आप भूल भी जाएंगे कि आपको वो खाना था। मैं पूछने वाला था, मैंने स्टॉप कर लिया कि क्यों, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सो यू आंसर मी वेरी वेल। डिस्ट्रैक्ट किया ना अपने आप को। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, पेंटिंग, कलरिंग, कुछ भी। अगर किसी के साथ फोन पे बात करनी हो, आप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप जो बोल रहे थे हैबिट, वो हम ब्रेक कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप एक कोई नई हैबिट डाल सकते हैं। I find that very interesting.
मैं ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਫਟਰ ਫੂਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਮਿੱਠਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਟ देयर एंड देन तो अगर जैसे मैं कुछ आई स्टार्ट डूइंग समथिंग हो सकता है कि आई कैन फॉरगेट अबाउट इट मैं आज की बात बोलूंगा मैं मेरा पहले आगे थोड़े तो मैं तो थोड़ा भी सब टेक अवे खा रहे थे तो जो मेरा फ्रेंड है ना तो उसने क्या किया क्योंकि लोहड़ी थे ना तो वो रेवड़ी वगैरह वो मीठा ले आया तो बोलता मेरे फ्रेंड ने बहुत कुछ मुझे दे दिया तो उसने सर पे रख दिया हमने खाना खाया मैंने देखी क्यों तो आई कुड नॉट रेजिस्ट मैंने वो जितना नहीं खाना जास्ती खा लिया तो क्योंकि गुड़ कहते हैं ना जो गुड़ की होती है they're not that bad than having a sugar one is that right So अगर मैं उस चीज पे कमेंट करूँ तो मैं यही बोलूंगी कि शुगर होता है शुगर होता है चाहे वो गुड़ हो शहद हो एक्चुअल वाइट शुगर ब्राउन शुगर कोकोनट शुगर जो भी हो तो हमें खाना है तो वो लिमिट में ही खाना है जैसे कि रिकमेंडेशन बोलता है कि हमें दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए जो भी एडिशनल एडेड शुगर होती है तो आप हनी खाओ जैगरी खाओ हाँ गुड़ में मिनरल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं वाइट शुगर के कंपैरिजन में वो थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है लेकिन फिर भी हमें वो लिमिट में रहना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम शुगर इंटेक करेंगे जो मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन में वही होता है अच्छा मैं ना मुझसे फॉर्चुनेट होके कैन से इन वे मैं फॉर्चुनेट मैंने 2 लाइफ देखा है एक मैंने जो आई कम फ्रॉम कीनिया बाय द वे ईस्ट अफ्रीका दैट्स वेयर आई वाज बोर्न तो हम इंडिया जाते थे हॉलीडे में थोड़ा बहुत वहाँ का भी मुझे पता है वो ज़माने में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पिछले ज़माने की बात कर रहा हूँ आई एम शोइंग माय एज नाउ तो वहाँ पे मैंने बीमारी नहीं सुनी थी ना तो ब्लड प्रेशर ना शुगर ऐसे कुछ नहीं होता था हम 3 मील खाते थे दिन के अंदर सुबह परोठा खाया दोपहर को खाया यहाँ पे तो हम 3 कोई भी बहुत कम खाते हैं पहले कोई सुबह खा लेता है तो लंच नहीं खाता है तो किसी ने सुबह नहीं खाया वो लंच खा लेगा दे डिस्ट्रीब्यूट तो वो बीमारियाँ पहले क्यों नहीं होती तो लाइफस्टाइल भी तो सेम ही था लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा नहीं था सेम जितना हमें लगता है अगर हम ऐसा आउटसाइड से देखें बाहर से देखें लेकिन तभी फिजिकल परिश्रम बहुत ज़्यादा होता था बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे मेजॉरिटी ऑक्यूपेशन क्या होता था खेती बाड़ी करना या फार्म में काम करना या कुछ भी फिजिकल उठा लेना तो वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसमें ही हो जाती थी एंड उसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे एंड प्लस उस टाइम का जो खाना पीना उनका जो क्वालिटी होता था वो आज हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता दैट यूज्ड टू बी फ्रेश दैट आई एग्री हाँ या अच्छा अभी बातों बात में मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि food plays a lot of part यस big time ना यस does your tension play any major part in the ability को to get you into that problem blood pressure का जब भी आप सारा दिन वरी करते रहते हो टेंशन लेते हो जितना फूड का प्रॉब्लम है उतना उसका भी तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली दैट्स वो बहुत बड़ा पॉइंट जो आपने बताया बहुत सही बताया सर क्योंकि स्ट्रेस जो है हम किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर हम कई दिनों तक लाइक क्रॉनिकली या कई दिनों तक लगातार हम बराबर सो नहीं रहे तो वो भी बॉडी के लिए स्ट्रेस हो सकता है तो वो नेसेसरी नहीं है कि हम सोच विचार में है या हमें कोई एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन में स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस के कारण हमारे बॉडी में स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल एंड वो अगर लंबे समय तक हमारा कॉर्टिसोल यानी वो स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है तो हमें सारे कंडीशंस इंक्लूडिंग ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं तो कितनी दफ़ा होता है आप बहुत लोग करते हैं एवरी सेकेंड या थर्ड डे अपना शुगर लेवल टेस्ट करते हैं तो एक दफ़ा बहुत हाई दिखा रहा वो तो वन स्टार्ट थिंकिंग मैंने तो कुछ खाया नहीं है मेरी डाइट वही थी यही थी तो उसको ये नहीं पता कि मैंने कुछ स्ट्रेस लिया ना वुड दैट ट्रिगर द डायबिटीज दैट इज़ वेरी हाईली पॉसिबल रियली काफ़ी हद तक हो सकता है बट अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का वो ब्लड टेस्ट भी करते हैं बिकॉज काफ़ी जो होते हैं वो तुरंत हमें ब्लड में से शुगर दिखाता है हाँ. जैसे कि अभी मैंने सपोज प्रिक किया तो बताएगा कि अभी मेरा शुगर कितना है वेरेज जो एक्चुअल लैब्स में जो डॉक्टर के पास जाके जो टेस्ट की जाती है वो होती है HbA1c वो टेस्ट का नाम है सिंपल भाषा में बताऊं तो वो हमें 3 महीने का एवरेज देता है रफली रियली तो हमारे 3 महीने के एवरेज का शुगर तो वो एक जो टेस्ट है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो ऐसा नहीं कि मैं शादी में गई थी तो मैंने कुछ खा लिया बट वो 3 महीने का हमें एवरेज देता है तो यूजुअली
डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के लिए वो ज़्यादा देखा जाता है. लेकिन tell me, it gets, when you get a bit older, like 35, diabetes के बाद कोई एज नहीं है, can happen any time. मैंने बच्चों में भी देखा है, बहुत सफर करते हैं because obviously that's comes from the family as well. Yes. So besides the overweight, what are the other signs? Other signs of knowing about diabetes. So बहुत सारी चीज़ें होती है. पहला होता है जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया. इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि हमारा बॉडी के जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है. तो अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ गया तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. तो समझिए कि वो इंसुलिन है, वो चाबी है. तो वो चाबी हमारे बॉडी के एक एक सेल, एक एक जो पार्ट्स होते हैं उनको खोल के उसके अंदर शुगर भरनी पड़ती है. तो जब भी हम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं या हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हमारे पैनक्रियास को हमारा ब्रेन बताता है और बनाओ और बनाओ और बनाओ, क्योंकि एक हद तक ही हमारे ब्लड में शुगर रह सकता है. और अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो अलग अलग जगह पे स्टोर करने लगेगा. तो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड एज फैट स्टोर होता है, या ओबेसिटी में जैसे बोले पेट के अराउंड हो गया या लोअर बॉडी में हो गया, वैसे ओवर टाइम वो स्टोर होता है. तो वो एक डेफिनेटली साइन है. दूसरा साइन बोल सकते हैं एकैंथोसिस निगरिकेंस. सिंपल भाषा में बताऊं, ये बहुत क्लिनिकल टर्म है. इज ऐसा वेलवेटी पैचेस होते हैं, डार्कनेस ऑफ स्किन होता है, नेक के पीछे हो गया, आर्म्स के आर्मपिट्स में हो गया, ऐसे फोल्ड्स में, वो बहुत अलग सा दिखता है. तो वो एक और साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का. बट ऑब्वियसली बेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कराओ, तो उससे भी आपको पता चल पर सकता जब है. स्किन की आप बात कर रहे हो, मैंने पहली दफा सुना है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जो नहीं पता तो आई एडमिट दैट majority of people will look something wrong with the skin. वो कभी दिमाग में नहीं आके something wrong with the diabetes. Yeah. Difficult to understand that, ना? Yes. लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो वो डार्कनेस ऐसा पैच हो जाता है, लाइक वेलवेटी पैच, वो अलग दिखता है. अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो भी पिक्चर्स में दिख जाएगा. एकैंथोसिस निगरिकेंस बोलते हैं उसको. मैं ना कहने वाला सीगा, मैंने मैसेज फटाफट आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Somebody will let me even talk. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਪੈਚਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ. ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡੋਂਟ ਪੈਨਿਕ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਟਿਲ ਗੈਟ ਇਟ ਚੈੱਕਡ ਬਾਈ ਦ ਡਾਕਟਰ. Always be safer than being sorry. ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵੋ. But don't be in any doubt. Don't take any stress कि हाँ मेरे दाग हैगा, maybe मैंने आया हो गया. Don't worry about that. This is a chat show. हर तरह का different बंदे का होता है. So please just hear me out. और थोड़ा जरा at least पता लग गया कि जो मेरे कोई पैच हैगा तो मैं डॉक्टर नाल चेक करा लो. That's the best way to do it. The other thing is, आपने बोला कि I'm trying to find out the reasons कि किस तरह, because the मीठा is very tempting, especially for a person like me. बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने कि distract about doing something else. Very good idea. Honestly, कह रहा हूँ, because if you want to make it work, it will work. Yes. तुम पे डिपेंड करता वो. Is boredom does that as well? Because मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा. When he's bored, he starts eating too much. Everything. Yes. डेफिनेटली. क्योंकि बोर्डम बहुत सारी, मतलब हम जो खाते हैं वो हमारे इमोशन से भी जुड़ा होता है, और हम कैसा फील कर रहे हैं. अगर हम अकेले हैं, अगर हम सैड है, अगर हम दुखी है, अगर हम बोर्ड है, तो हमें खाने की तरफ मन होगा, आकर्षित होंगे हम. क्यों? क्योंकि अगर हम वो चीज़ कुछ खाते हैं, जैसे कि मीठा खा लिया, हमें इंस्टेंटली अच्छा फील होता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलती है अंदर. तो वो जो फील गुड जो हार्मोन होते हैं, डोपामीन बोलते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, वो इंस्टेंटली फील होता है उस मोमेंट में. लेकिन कुछ देर बाद हमें लगेगा कि अरे मैंने ये क्यों खाया, या मैंने खाया लेकिन मुझे कोई कंट्रोल ही नहीं था इस चीज़ पे. क्योंकि हम तभी सोच नहीं रहे थे, हम माइंडलेसली खा रहे थे, माइंडफुली नहीं खा रहे थे. माइंडफुली मतलब कि मेरी सारी सेंसेस, मैं जब भी खाना खा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे खाने के साथ हूँ. ऐसा नहीं कि मैं टीवी देख रही हूँ, एक साइड मेरा फ़ोन चल रहा है, एक साइड कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं फुल्ली प्रेजेंट हूँ मेरे खाने के साथ. तो दैट इज़ बीइंग माइंडफुल. तो उससे एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि कुछ और टास्क कर सकते हैं. एक और चीज़ होती है कि हमारी भूख वाली जो सेंसेशन होती है और थर्स्ट मतलब प्यास वाली जो सेंसेशन होती है, उसमें भी हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं.
क्योंकि हमारा जो वो पाथवे होता है, मतलब जब भी हमें हमारा पेट ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है और बताता है अरे मेरा पेट फुल हो गया और नहीं खाना, उसमें कभी कभी देरी लग जाती है ओवर टाइम। क्योंकि ये जो पाथवे है, जब भी हम बच्चे होते हैं, जब भी हम टीन्स में, एडोलेसेंस में होते हैं, तभी वो पीक पे होता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कम होता जाता है। तो अगर हम माइंडफुली खाना खाएंगे तो वो हम उस पाथवे को वापस इग्नाइट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हाँ अभी मैं फुल हूँ। तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आधा ग्लास पानी पी लीजिए। शायद हो सकता है कि वो आपको प्यास लगी थी लेकिन भूख नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम खाने की तरफ जाते हैं इंस्टेंट, वो कंफर्ट के लिए, वो अच्छा महसूस करने के लिए। You know, sorry, would you believe we got through the half a time? तो हम थोड़ी ब्रेक लेंगे तो we'll continue. थोड़ी बहुत ब्रेक लेने वापस आवांगे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट गल है, यानी ऑनेस्टली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना है, मैं कितने मेडिकल शो करदा पर every time you learn, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ they're totally new. Sometimes you don't worry to listen. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। I do these shows every time. Honestly, every time I show karda manu maza aata because you learn. There's never enough, you know. Tusi do local milde na, they come up with different things to another. My God, yeah, that could be right, that could be right. So please suno, apna lifestyle nu thoda change karo, because jo aaj ladki ne gala ki she's so young and she's so focused up in head. I'm so impressed with that. Honestly, such keh raha. And Rabbi nu lambi umar dawe, you know, she's out there to help people. And bada acha lagda hai. And Punjabi समझ आती है ना सारे। मैं ना before I go any further, because I like when people listen to it, तो शौकलान तो उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मेरे खास दोस्त है ने कुलजीत दत्त from Slough, funny enough he's so psychic। मैंने इसके बारे में बात करनी थी अभी आपके साथ, तो उसका मैसेज आया, ये सच, this is linked। You know, sensing होते हैं, sixth sense होती है ना, वो है एकदम। I was going to say, I wasn't going to mention his name, लेकिन मुझे ये लास्ट वीक मिला था ना, and मैं एज नहीं बोलूँगा, he's not young, he's not old, he's okay, yeah, लेकिन he's very fit, very thin, he's looked after himself। जब भी तुम देखते हो ना तो you feel कि nice clean आदमी in every way। तो would he be suffering from diabetes? Because is the overweight only reason for diabetes? नहीं, नॉट नेसेसरीली। वो भी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो स्लिम आदमी है तो ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूटीनली आप डॉक्टर के पास जाए, ब्लड चेकअप कराए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ रिफ्लेक्ट होगी। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई दिखने में स्लिम है मतलब वो हेल्दी है। आपको आई होप यू गॉट दैट आइडिया। एनीवे, तो दूसरा आपसे पूछा कि आस्क यू what Indian diet you can recommend? फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा सवाल है। एंड आई थिंक दर्शकों, जो आप सब हमें सुन रहे हैं, शायद आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें टेक अवे करने मिलेगी, लेके जाने मिलेगी। तो अगर डाइट की बात करें तो मुझे पर्सनली डाइट शब्द उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज खाना जो है वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, हमारे पूरे जीवन का पार्ट है। तो अगर हम किसी चीज़ को डाइट अगर मैंने बता दिया तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता है बहुत लोगों को, कि अच्छा ये खाना है, ये नहीं खाना है। बट अगर हम सोचेंगे कि हमारा जीवन, अगर मैं बोलूँ कि मैं पूरे जीवन में शुगर कभी नहीं खाऊंगी, तो वो कितना सस्टेनेबल है, मैं कितने लंबे समय तक वो चीज़ कर पाऊंगी। वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फूड को बहुत सारे फेस्टिवल से, फैमिली से, बहुत अच्छे मोमेंट से भी रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं। तो उसके लिए अगर डाइट की बात करें तो मैं बताऊंगी कि एक सिंपल रूल है जो हम सब फॉलो कर सकते हैं, इज़ वेट लॉस प्लेट, जिसे बोला जाता है। अगेन वो टर्म थोड़ा मुझे उतना पसंद नहीं है, बट इट्स वेरी इजी। तो अगर हम हमारी नॉर्मल साइज़ की, मीडियम साइज़ की जो डिनर प्लेट लेंगे, आधी जो प्लेट है वो हमें सब्जियों से भरनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी। क्या बात है, वेरी नाइस। तो हमेशा प्लेट जब भी परोसे, सब्जियों से परोसे, वो सैलेड हो गया या फिर सॉर्टेड वेजिटेबल्स, ग्रीन वगैरह है, ग्रीन्स हो गए, हमारी सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी है, एनी सब्जी, एनी सब्जी,
तो आधी प्लेट को उससे भर दीजिए। उसके बाद 1/4 जो दूसरा आधा है उसका भी आधा हमारा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, जैसे कि चना हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, या चिकन या कोई भी फॉर्म ऑफ मीट, एग्स, आप जो भी खाते हो प्रोटीन, वो हो गया। वो आप दूसरे हाफ का आधा भरेंगे, यानी कि 25%। और जो सबसे लास्ट में बचा है उसमें हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स डालेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पटेटोज हो गया, राइस हो गया, पास्ता हो गया, चपाती हो गई, फुलके, भटूरे, जो भी है वो उस 25% में आने चाहिए। हमारा बहुत सारा जो डाइट होता है बहुत कार्ब हैवी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम कभी कभी पोर्शन में बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो हमारा दुश्मन नहीं है, हम खा सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे पोर्शन साइज पे ध्यान देना है कि हम कितना खा रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये सिंपल चीज़ करेंगे कि हम इस तरह से प्लेटिंग स्टार्ट करें, हमारी परोसेंगे, तो जितनी लास्ट जो बची है स्पेस उसमें हम हमारे चपाती, चावल जो भी है हम उसमें भर सकते हैं। एंड बहुत सारी रिसर्च है, मैं जो भी बता रही हूँ वो रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बताती है कि हम जिस ऑर्डर में खाना भी खाते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि जो हमारी सब्जियां है, अगर पूरी नहीं खा सकते तो थोड़ी एटलीस्ट पहले खाइए, बाद में आप प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। उससे क्या होता है कि जो सब्जियां है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो हमारे ब्लड में जो वो ग्लूकोज या शुगर रिलीज करता है धीमे धीमे रिलीज करता है, और उसके कारण लॉन्ग टर्म में चाहे आपको डायबिटीज हो ना हो, रिस्क हो ना हो, वो बेनिफिशियल है। मैं खुद भी वो चीज़ फॉलो करती हूँ और वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आप डाइट के मामले में ये चीज़ ध्यान रखिए, बिकॉज अगर मैं बोलूँगी कि अगर आप ठीक है अंडा खा लीजिए, प्रोटीन के लिए आप अंडा खाइए या चिकन खाइए, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो इसके लिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो फूड ग्रुप में डिवाइडेड होता है। तो आप फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप जो खाना खाते हो, आपके घर में जो खाना आप लाते हो, जो फूड्स लाते हो, उसमें सिर्फ ये फूड ग्रुप रिकॉग्नाइज कीजिए कि वेजिटेबल तो हमें सबको पता है कि वेजिटेबल फ्रूट में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, पटेटोज आता है, राइस आता है, ब्रेड आता है, और प्रोटीन में चना, चावल, छोले, चना, चावल, चौली, छोले, चिकन, एग्स, जो भी। तो अगर आप फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लेट करेंगे और वैसे अपने मील्स खाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म। पता क्या, मुझे कम से कम 2-3 घंटे का शो चाहिए, इतने सवाल होते हैं ना, बिकॉज सो इंटरेस्टिंग। मेरे तो सवाल तो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, आपके आंसर से मुझे सवाल मिल ही जा रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा बहुत ऑनेस्ट करा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आउट कि हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस। यार बहुत सवाल है, मैं ज़रा थोड़ा फास्ट करूँगा थोड़ा सा। How can you be more physically active? How can be more physically active? Does that mean you have to go to the gym, or you can do without going to the gym? बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों में कि हमें जिम ही जाना है, हाँ। बट ऐसा नहीं है। हम हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें बताओ तो म्यूजिक लगा के डांस कर लीजिए, वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है। और अगर आप करंटली, ये मैं बिगेस्ट टेक अवे आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप अभी कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी उतना नहीं कर रहे हो, सिर्फ चलने से शुरुआत कीजिए। दिन के आप 100, 200, 500 स्टेप ज़्यादा करेंगे। अभी अगर मैं सोच रही तो मुझे लगेगा अरे 200, 400 स्टेप में एक्स्ट्रा किया तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी हैबिट अगर हम ये कंसिस्टेंटली करेंगे, ओवर टाइम ये सब कुछ एडअप होता है। तो आप डांस कर सकते हो, योगा या जुम्बा या जो भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है वैसी एक्टिविटीज़ ढूंढिए। स्विमिंग अगर आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स कर लीजिए। या सिंपल चीज़, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको जो बस स्टॉप पे उतरना है उससे 1-2 स्टॉप पहले उतर जाइए, तो आप 5-10 मिनट ज़्यादा चल लेंगे। वो ठीक है, अभी मैं सोच रही तो ज़्यादा, अरे 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा, लेकिन ओवर टाइम वो चीज़ एडअप होती है। डेफिनेटली। अच्छा, ये विद द फूड मैनेजमेंट, यस, विद द ये अपने आप को फिजिकली फिट रखना, डजंट हैव टू बी जिम, वॉक करना, किसी न किसी तरह का अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना, कैन दिस बीमारियां भी रिवर्स्ड लाइक डायबिटीज? यस, डेफिनेटली। सो डायबिटीज रेमिशन में यानी कि रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर आप रिसेंटली डायग्नोज हुए हो तो पॉसिबल है। अगर आप खाने पे ध्यान दें, लाइफस्टाइल पे ध्यान दें,
स्ट्रेस पे ध्यान दे तो वो हो सकता है डेफिनेटली। एंड अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो काफी लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड होती है या ऊपर नीचे होती है, तो वो भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। एक बार लोगों में बहुत चीज देखी है जो मुझे भी बुरी लगती है ना, कितनी दफा पार्टी पे जाते हैं ना, जास्ती खा लेते हैं, तो वाइफ को बोले, वाइफ की आदत होती है रोकेगी आदमी को कि तू नहीं खा, क्योंकि वाइफ से ऑलवेज बहुत केयरफुल आदमी जो होते हैं दे बिट बहुत केयरलेस। मैं सॉरी, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं रात को 2 गोली खा लूंगा। सो दैट डजंट जस्टिफाई ना। अगर आपको प्रिस्क्राइब किया अपने फार्मर मिल की, तो आपके एक सुबह एक शाम को खानी है, Yes. तो अब रात को 1000 नहीं ले सकते हो ना। डज दैट हेल्प यू इन अ वे? नो, आई थिंक इसमें भी जो बिहेवियर चेंज की हम बात कर रहे थे, ओवर टाइम वही हेल्प करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं मेडिसिन से पर्सपेक्टिव से नहीं बता सकती, लेकिन ये ओवर टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे सोशल सिचुएशन हो गई कि मुझे बाहर खाना है या मैं कोई शादी में जा रही हूँ या कोई फंक्शन में जा रही हूँ, तो अगर हमारा दिमाग ना ऐसे बच्चों को कैसे अगर हम चीज़ कोई करने बोलेंगे कि ये मत करो बेटा, तो उनको वही चीज़ करनी है। तो वैसा ही हो गया, अगर मैं बोलूँगी आपको कि ये आप मत खाइए तो आपको वही खाने का मन होगा। तुम भी साइकिक हो। मैं ये बात आपको जो मैं सवाल पूछने बोला था अपने पहले जवाब सब सुना के मैं अपनी वही मुझे जवाब दे दी। यस, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने बात करनी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। अब बच्चे को कहते हैं बच्चे इसको हाथ नहीं लगाना, वो हाथ लगाएगा, उसको हाथ लगा के वो जलन होएगा तो उसको फिर अकल आएगी। अभी यहाँ पे बड़े लोग हैं, मुझे जान पहचाने, मैं नाम नहीं लूंगा तो बोलेंगे तुम्हारे मेरा नेशनल टीवी पे नाम ले लिया। यंग है, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मीठा भी खाते हैं, सब बोलते हैं अभी मैं यंग हूँ, जरा जब भी होगी तो मैं छोड़ दूंगा बाद में। सो व्हाई डू दे टेक दिस रिस्क? ये क्यों नहीं समझते बच्चे की तरफ? वो भी उसी तरफ जा रहे हैं वो भी। सही बात है। You know how can, मैं क्या चाहता हूँ, टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है। I want you to sum up the whole thing। Yes. जो एक्सरसाइज की बात हुई, फूड की हुई, अगर कौन सी एज पे कभी फैमिली में हिस्ट्री है उन लोगों को, व्हाट दे नीड टू डू, किस तरह ये चीज को बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने जो बोला था बिगिनिंग में, शुरुआत में, कि ये चलती आ रही है, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। तो टाइम तो लगेगा। देयर लॉट ऑफ सैक्रिफाइस यू हैव टू डू। यू रियली हैव टू मेक अ बिग चेंज इन योर लाइफ। लाइफस्टाइल के अंदर, खाने पीने में, हर जगह पे करना पड़ेगा। सो आई वांट यू टू लुक एट दैट कैमरा एंड प्लीज टॉक टू पीपल, गिव देम एडवाइस। मे बी होपफुली समवन विल स्टार्ट फॉलोइंग योर एडवाइस। सो शायद जो लोगों को अभी रिसेंटली डायबिटीज है, मे बी दे कैन रिवर्स दैट। जिन्हों की देर की है, मे बी दे कैन स्टार्ट कंट्रोलिंग इट इन अ बेटर वे। Take your time and give us advice. Definitely. Thank you so much आप सभी का भी इतना अच्छे से सुनने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 बातें जो आप आज के शो से टेक अवे कर सकते हो। एंड आज हमने बहुत अच्छी टॉपिक्स पे बातें की, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें लग सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक साथ सब चीज़ें शुरू मत कीजिए। एक साथ जैसे कि मैं खाने में ये चेंज करूँगी, मैं कल से 5 दिन मैं जिम जाऊँगी या वॉक करूँगी या मैं कुछ और करूँगी। कोई भी एक चीज़ पे फोकस कीजिए। हमारे जो गोल्स हैं हमें 3 अलग अलग एरियाज में सेट करने हैं। पहला हमारा हो गया हमारे खाने रिलेटेड गोल। क्या निकालना है उसके बारे में मत सोचिए, क्या ऐड करना है उसके बारे में सोचिए। तो जैसे मैंने आपको प्रपोर्शन बताया, आधी प्लेट वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट जो है हमारा प्रोटीन का सोर्स, और जो आधा क्वार्टर बचा है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप इवन इफ इट्स लाइक लंच या डिनर या कोई भी एक मील हो गया, उस पर ध्यान दीजिए। क्या मेरे प्लेट में इनफ सब्जियां है, क्या मेरे प्लेट में इनफ प्रोटीन है? नहीं है तो आप उसे ऐड कीजिए। तो वो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी। दूसरा हो गया फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट हो गया। अगर आपको कोई और कंडीशंस है, फिजिकली कोई और चैलेंजेस है, आप सीटेड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। किसी भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट आप मूवमेंट कीजिए। अभी आपको लगेगा कि वो बहुत छोटी चीज़ है, ओवर टाइम आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, थोड़ा सोचिए कि जैसे कि सर ने मुझे बताया अभी कि उनको खाने के बाद मीठे का शौक है, तो आपको ऐसा कुछ क्रेविंग होती है, या आप नोटिस कीजिए कि अगर मैं कभी सैड होती हूँ या कभी मुझे एक कोई पर्टिकुलर इमोशन फील होता है या मैं ट्रिगर हो जाती हूँ कि किसी ने मेरे से अच्छे से शायद बात नहीं की और फिर मैं
खाने में वो कंफर्ट ढूंढ रही हूँ। तो आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा सोचिए कि मुझे और क्या है जो चेंज करना है, और इन तीनों बातों का आप बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखिए, लेकिन कोई भी एक छोटी चीज से शुरुआत कीजिए। एंड दैट इज इवन इफ वो इतना छोटा है कि मैं वीक में 2 बार मैं आधे घंटे के लिए वॉक पे जाऊंगी, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहिए, तो ओवर टाइम आपको उस चीज का रिजल्ट दिखेगा जरूर। बहुत अच्छे। ये मैं बड़ी बात सुनता हूँ कि इंसान के अभी लॉट ऑफ पीपल लाइक माइसेल्फ वी कांट बहुत दूर तक चल नहीं सकते हैं। आधा 500 यार्ड गए, कल 1000 यार्ड गए, आस्ते आस्ते अब बोला तो स्लोली स्लोली कैन विन इट, लेकिन स्टार्ट समवेयर। एग्जैक्टली। Yeah? तो अभी मैं ये कुछ तो दिमाग में बड़ी बातें होती है, आई डोंट नो हाउ यू एक्सप्लेन योर माइंड। आपने कितनी दफा सुना कि औरतों के अंदर जो बुजुर्ग होती है ना, चाहती नॉर्मली वही कहते हैं मेरे जैसे, यार मुझे थोड़ी हेड का थकावट है, मुझे चाय का कप दे। तो चाय क्या करेगी? वो तो माइंड के अंदर है ना। यू थिंक यू गोना हैव अ कप ऑफ टी, यू गोना मेक यू फील बेटर। वो लोग वाकई बेटर फील करते हैं। ये क्यों इस तरह होता है? अगेन जैसे हमने बात की हैबिट, हैबिट के ना बहुत सारी चीजें हैबिट होती है। देखिए चाय कॉफी में भी कोई दुश्मन नहीं है हमारे, हमारी हैबिट है उठ के चाय चाहिए। बट मैं यही कहूंगी कि अगर आप चाय पी रहे हो, खाली पेट ना पिए, सुबह उठ के पहले कुछ खा लीजिए, बाद में चाय पिए। और हमारे में हम बड़े मीठे लोग होते हैं, तो हमें चीनी बहुत पसंद है, तो थोड़ा चीनी को ध्यान से डालिए एंड उसमें कंट्रोल कीजिए। तो पूरे दिन में अगर हम दिन में 2 कप चाय पी रहे हैं, तो अगर मैंने 2 स्पून डाल दी, तो 4 स्पून चीनी तो मेरी उधर ही होगी। तो उसके अलावा मेरी मिठाई या जो भी हो गया, वो उसके अराउंड एडिशनल शुगर हो जाएगा। मैंने हमेशा जब भी शो करते ना, लेकिन आई एम सॉरी, मैं खुद भी कल्प्रेट हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो है ना। You know, I always say to people, get up in the morning, Yes. freshen up yourself, make yourself look better and feel better. Yes. अगर आप खुद को लुक आफ्टर नहीं करते हो, खुद को आप बेटर फील नहीं करते हो, when you meet people on the street, you can't make them happy. Yes. Yeah, you are miserable yourself. तुम खुद को कोई टेंशन है, कोई प्रेशर है, then you talk। मैं कितने लोगों को बात करता हूँ, कैसे हो, बोलता मैं टाइम पास करता हूँ। अभी तो 15-20 साल हो जाएगा तो टाइम पास करे जाएगा। डू समथिंग इन योर लाइफ यार। Yes. नहीं, ये तो मैं करता हूँ, आई कीप माई सेल्फ वेरी बिजी। बोलते हैं ना, जो खाली दिमाग होता है तो शैतान का घर होता है। वो सच होता है, बिकॉज गलत बातें आती है ना। डोंट गिव योर माइंड नो चांस कि मैं कोई गलत सोचा। यू नो, पुट दैट ऑन द राइट ट्रैक, कीप इट बिजी ऑल द टाइम। एंड ये यार भगवान ने आपको जिस्म दिया, इतनी खूबसूरत चीज है। यार लुक आफ्टर इट, Yes. लुक आफ्टर इट, बिकॉज वो कब ले जाएगा किसी को नहीं पता है। अच्छे खेलते फिरते भी जा सकते हैं, बीमार भी जा सकते हैं। Some people struggle for many years on the bed, they still don't go. Yeah. ये किस्मत की बात होती है। तो लेकिन very, how do you know Mandy? उसका फर्स्ट नेम मनप्रीत है ना? Thank you Mandy, Mandeep, very much, and such an intelligent guest. Honestly कहना मजा आ गया, really nice, and she really helped me a lot. And आज जो मेरा गेस्ट है, मैंडी ने मैंने फाइंड अप करके देता। मैंडी, थैंक यू सो मच। रब तो लंबी उम्र तो प्लीज मेरी हेल्प करा करो, बिकॉज आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट। कितने बहुत साल हो गए मुझे ये शो करते ना, तो अभी मेरी जो लाइन है एग्जॉस्ट होती जा रही है हौली हौली शो। बट अब ग्लैड कुछ दूसरा प्रोग्राम करेंगे, विल ब्रिंग यू बैक अगेन, बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, ये दिस इज द वास्ट सब्जेक्ट। Yes. यू कैन टॉक इट फॉर वेरी, वी विल नॉट मेक इट बोरिंग, बिकॉज बंदा एक घंटा बैठ के सुनते हो, मैं तो इसके अंदर जी बड़ा बोर हो गया बड़ा। यार अजय प्रोग्राम ना, दे वेरी एजुकेशनल, वेरी इन्फॉर्मेटिव। ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑफ चार्ज अकाल चैनल मैं इदां दे प्रोफैशनल बंदे लैके आना है, लिसन टू दैम। ਅਸੀਂ always ਕਹਿੰਦੇ I know, no you don't know because you don't know enough. There's always ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। And I swear upon God ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, lot of things I've learned, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਨਾ, I think you're totally wrong. We need to learn every day। बड़ा अच्छा मेरा शो देखा करो, थोड़े फायदे का होता है मेरा। यू नो, आपकी तरह मेरी आदत पता क्या, मेरे को ना ऐसे लगता है मुझे भगवान ने भेजा कि तो लोगों की मदद कर, बस लोगों की। एंड मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ना मेरे सिर के ऊपर, तो दैट्स इनफ फॉर मी। Yes. ही कैन गिव मी व्हाट आई वांट। लोग नहीं कुछ दे सकते हैं, तो लोग तो यू नो अच्छे भी है, बुरे भी, हर तरह के लोग होते हैं। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से बिफोर वी रैप इट अप? अभी टाइम I just wanted to say one more thing कि something ये I haven't covered, because let's talk about that. कुछ हमने नहीं कवर, तो बहुत कुछ करने वाला, there's lot to talk about. नहीं, मैं एक ही टेक अवे में, ये चीज़ मुझे पर्सनली मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ, बहुत मानती हूँ इस चीज़ को
कि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी कितनी भी वेल्थ होगी वो हमारे किसी काम की नहीं सही होगी। बात है। तो इसके लिए एक ही जिंदगी है, और अगर हम उसका चिराग बनेंगे, हम उस चीज़ की शुरुआत करेंगे हमारे परिवार में और हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली में, तो हमें देख के दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, अच्छे इन्फ्लुएंस होंगे, और वो सभी चीज़ के लिए अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, एंड आई होप कि आप इसमें से किसी एक चीज़ के बारे में एक छोटा सा गोल बनाएंगे और अपनी शुरुआत करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत नाइस। देखो, मैं ब्लैकमेल नहीं करता लोगों को, जो मैं सुनता हूँ वो कह रहा हूँ। जो बॉडी, देखो मैंने ये पहले भी मैंने शो पे जिक्र किया मैं ये बात का, जो प्रोडक्शन लाइन मशीनरी होती है जो दिन रात चलती है, फैक्ट्री चलती है, 12 महीने चलती है, लेकिन वो 1-2 वीक को शट डाउन करते हैं, डिटॉक्स करते हैं मशीन को। ये वही चीज़ है हमारा जिस्म। काम कराओ, लेकिन इसको ना गिव योर जिस्म को हॉलीडे दो। व्हेन यू से हॉलीडे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चले गए किसी के घर पे, इंडिया चले गए रिश्तेदार के, totally shut down from everything. Go somewhere really quiet, somewhere really nice. कोई भागा भागी ना, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए ना। तेरे बॉडी को डिटॉक्स करो, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए, दिमाग को, आंखों को, जुबान को, हाथ को, पैरों को, हर चीज को जुबान चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दोगे ना तो खुदा एक चीज ले देगा आपसे। वो तभी लेके जाएगा जब भी उसको लेके जानी है, नॉट व्हेन यू वांट टू गिव इट। Correct. सो वो खोने से पहले गिव योर जिस्म अ रेस्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। नहीं, सच कह रहा हूँ, बिकॉज हम नहीं सोचते हैं। हम बोलते हैं, कितने लोग है ना, दे आर नॉट फीलिंग गुड, तुम किसको बोलो बच्चा तू काम पे नहीं जा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आई कांट हैव टू गो टू वर्क। जब भी तुम 2 महीने बीमार होके बेड पे पड़ोगे तो क्या होगा फिर? अगर हम खुद ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो हमारी बॉडी हमें फोर्स करेगी वो करेगी ब्रेक ना लेने ब्रेक के को, लिए। और वो टाइमिंग शायद हमारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। नहीं होगा ना। फिर हम एवरी टाइम सोचते यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया होता। 2-3 बातें, हम थोड़ा बहुत, मैं हेल्थ से भी बात जा रहा हूँ। जब भी आपकी लाइफ के अंदर ना कभी कुछ आपके साथ बुरा होता है, आपको लगता है बुरा होता है, बुरा नहीं होता है, ये भगवान की मर्जी है। वो क्यों आपके साथ आपको लेसन दे रहा है ना। कुछ उसने आपको तकलीफ दी, आपका पैसे का खर्च हो गया, लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने टेंशन में चले जाते हैं ना, लेकिन उसको शुक्रिया करो कि तूने मुझे सस्ते में छोड़ दिया। कोई मेरा अंग, मेरा कोई जिस्म नहीं टूटा, मेरा हाथ पाँव चलता, सब कुछ चलता है, मेरी आंखें, मेरा ब्रेन चलता है, मेरे पैसे का नुकसान हुआ है, थैंक यू भगवान। लेकिन हम भगवान को कोसते हैं फिर भी कि तूने मेरा नुकसान कर दिया। ये मामला जिस्म के ऊपर आता है। इसको दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान को, जो खुदा ने, भगवान ने आपको बॉडी के अंदर दिया ना, किसी ने कोई इस तरह का गाड़ी, कोई मशीन, कुछ दुनिया के अंदर चीज नहीं बनी हुई। किस तरह के ये जिस्म चलता है, तुम आंखें की बात देखो। मैं कितनी छोटी छोटी बातों पे सोचता हूँ, आंखें भगवान ने अंदर लगाई है, ऊपर कितना हार्ड उसने ये चीक है, यहाँ पे ये बोन है, सेफ्टी दिया उसको। किस तरह को, किस तरह इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इसी तरह आपके अंदर कितना सॉल्ट चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्या क्या हिसाब, किस तरह उसको फर्क किया हुआ है सारा कुछ। इंसान ने, आप लोगों को जैसे ने बड़ा कोई रिसर्च करके आपने पता कर लिया कि जिस्म कैसे काम करता है, which is very good idea actually, because we need people like you to tell people कि भाई ऐसे करो, थोड़ा थोड़ा करो, don't put too much pressure on yourself। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी आदत होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बच्चों को जब मेरे को पानी लेके दे दे, वो गलत बात है। खुद उठो, जाके लेके आओ, दैट्स द एक्सरसाइज। डेफिनेटली। लेकिन ये मैं बातें खुद करता हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगा। देखो, मैंने उम्मीद रखना तुम लोग, टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है। मैं तो जेडे भी गल्ला हो रहा ने, दिस अ वेरी कॉमन टॉक है। इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी वन वे और द अदर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैडिकल कंडीशंस। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਲਿਟਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ये तो 3-4 बीमारियां ना, डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, ये तो हर के पास है। पैसा हो ना हो, फिर हर इंसान लकी नहीं होता कि पेरेंट्स से पैसा इनहेरिट करे, लेकिन बीमारियां वो करते हैं। होता है ना, पसंद हो नहीं पसंद हो, हमारे पास वो चॉइस नहीं है। वो है ना, चॉइस नहीं है। लेकिन दोज पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, जो घर के अंदर एक आधा बच्चा मिस कर जाता, वो जैसे आपने बोला ना, बिकॉज उसके he probably that child has followed the lifestyle जो आपने रिकमेंड किया अभी,
इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज ऐसे नहीं है कि वो लकी के उसको नहीं मिला तो उसको मिल गया, ऐसे नहीं होता. इट्स द चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल. यस. जो एक बच्चे में आदत था दूसरे में सेम नहीं होती ना, बेशक दो भाई हो कुछ भी हो ना ऐसे. तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, ये जो डायबिटीज है ना, ये द वर्स्ट पार्ट इज दे कॉल इट द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस. यस. या तो ये जो भी नाम देते हैं कि सब हमारे की माँ, तो वो इंसान तो वैसे डर जाता है यार. You know, because that can affect your lifestyle, that can Yes. affect your eyesight, यस. which is the worst thing. इनफैक्ट मेरे ग्रैंडफादर जो है वो 25 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट रह चुके हैं. Really? एंड मैंने उनको देखा है बड़े होते हुए कि वो अलग अलग क्या करते हैं. अभी मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ है तो मैं बताती हूँ, नहीं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए. बट या डेफिनेटली. एंड उसके अलावा भी अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई और सर्जरी भी करनी हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस राइज कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में. Absolutely. और रिकवरी में भी उसमें फैक्टर हो जाता डेफिनेटली यस. है ना. क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक, आपके पैरों की जो फिंगर्स ऐसे लेके आई साइड तक काफ़ी सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है. लेकिन एक मुझे बात पैरों से बात की, जब ये डायबिटीज है तो उनके पाँव गर्म क्यों रहते हैं, जलते क्यों नीचे से? अगेन दे बर्न, यू नो. तो ये सिम्टम्स सबको अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि कुछ लोगों को अगर कटवट लग गया, कुछ लग गया पैर में, तो वो हील होने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. कुछ लोगों को जैसे आपने बताया टेम्परेचर वाइज अलग होता है, तो वो सबको वो चीज़ें सिम्टम्स नहीं होते, कुछ कुछ को होते हैं. तो जैसे हम वो बात कर रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वो भी सिम्टम्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को वो सिम्टम्स दिखेंगे, यू नो. तो वो बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. लेकिन डायबिटीज के अंदर व्हाई डू दे एवरी मेडिकल टीम सेज कि अपने पाँव का बड़ा ख्याल रखना. व्हाई इज इट मोर डेंजरस टू हैव एनी इंजरी ऑन द फीट क्योंकि अगर वो देन एनी डायबिटीज, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी? बिकॉज वो इन्फेक्ट हो गया और हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. एंड ऑब्वियसली अगर हम चल रहे हैं वट हम शूज़ वगैरह पहनेंगे, क्लोज रहता है, तो उसको बोलते हैं वूंड खुला रखो, हील होने दो. और वो हील नहीं होता है. काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स में स्लो होता है या हील नहीं होता है. एंड वो यार थैंक यू सो मच. infect हो माफी जाता है. चाहूंगा, टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है, तो थैंक यू. फिर मुलाकात करेंगे प्लीज. अगर मुझे लगता है तो शो अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे. तब तक नाम रखकर सत श्री अकाल जी.